Hello, good morning. Welcome, Bacho. Welcome to this session of Missile after a long gap. So, today we are going to take a very important topic जो है क्लास 7 की NCERT book से lesson 12 and the title of the lesson is reproduction in plants. Okay, so we are going to talk about reproduction in plants chapter के बारे में और इसका बहुत ही important topic है we are going to deal is sexual reproduction in plants. Okay, so let's begin. Okay, first, what do you know about reproduction? Reproduction is made by combination of two words, re and production. तो इसको procreation और breeding भी बोला जाता है and it is a biological process यानी ये living organisms में ही होता है और उसमें क्या होता है न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं आर प्रोड्यूस्ड और कौन उनको प्रोड्यूस करता है they are produced by the parents. So reproduction is a biological process by which new individual organisms called offsprings are produced from their parents. Clear this much? Okay, let's go ahead. Now types of reproduction क्या होते हैं? They are sexual reproduction and they are asexual reproduction. So in this lesson we are going to talk about sexual reproduction. Now it's very simple. Like in case of human beings, a child has a father and a child has a mother. That means a father and a mother, they both reproduce a human child. अब ये जो human child है, it can be a boy, it can be a girl. That means it can be a male individual or male offspring or it can be a female offspring. Okay? So, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह से वी हैव इन डिफरेंट स्पीशीज ऑल्सो इस स्लाइड में फिर से दिखाया गया है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स दे बोथ रिप्रोड्यूस अ न्यू ह्यूमन बींग नाउ ये तो ह्यूमन बींग की बात हो गई इसी तरह से बाकी स्पीशीज लाइक कैट्स ओके डॉग्स इन सब में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेयर वी हैव अ मेल पेरेंट एंड अ फीमेल पेरेंट और दोनों मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल डॉग को और या कैट को ओके नाउ सिमिलरली जैसा कि एनिमल्स में होता है वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपनिंग इन प्लांट्स आल्सो एज यू कैन सी देयर हैज टू बी अ मेल फ्लावर there has to be a female flower both of them will combine to form a new plant yes क्या बनेगा new plant बनेगा और जिसके ऊपर फिर से फ्लावर्स होंगे और वापस से ये फ्लावर्स मिलके दोबारा से एक नया प्लांट बनाएंगे सो दिस इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओके अभी आपको और क्लियर हो जाएगा व्हेन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा इससे पहले we go ahead about the sexual reproduction in plants, there are certain important things which you must know about sexual reproduction. Now, what are these? First, sexual reproduction requires two parents. Okay, it is very evident. हमारी पुरानी स्लाइड में हमने देखा था एक फादर है एक मदर है फिर वो चाहे ह्यूमंस में हो फिर वो चाहे कैट्स में हो फिर वो चाहे डॉग्स में हो and even in plants we have a male flower and a female flower ठीक है और जो भी मतलब मेल और फीमेल पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गैमीट्स इट इज अ वेरी न्यू word a new term for you gamete अब gamete क्या होती हैं gametes are nothing but special cells okay which take part in the reproduction now gametes are male gametes and female gametes means जो male पेरेंट है उसके द्वारा जो सेल बनता है स्पेशल सेल जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा उसको बोलते हैं मेल गैमीट और जो फीमेल पेरेंट है जो वो स्पेशल सेल बनाती है उसको बोलेंगे फीमेल गैमीट ओके नाउ these two gametes what is gamete male and female gamete okay these two gamete they fuse and they form a new cell which is called zygote okay and this complete process is called fertilization okay now this I will just make it very clear here only okay now this symbol is for female and this symbol is for male okay so
let us see, there is a cell here and there is a cell here. Now if I say this is a male cell, so I will represent it by saying this, and if I say this is a female cell, I will represent it by like this. Okay, so a male gamete, we can say this is a male gamete, this is a female gamete. So these two gametes, they fuse. That means this complete process of fusion of male gamete and female gamete is called what? It is called fertilization. और इस fertilization के द्वारा जो लास्ट में इन दोनों के फ्यूजन से जो एक सेल बनेगा, जिसमें कि क्या होगा, मेल गैमेट भी होगा प्रेजेंट, जिसमें कि फीमेल गैमेट भी होगा प्रेजेंट, इस सेल को हम बोलेंगे क्या? इस सेल को हम बोलेंगे zygote. Understood? Okay, now next is it responsible for variation. जो sexual reproduction होता है ये variation के लिए responsible होता है in next generation. अब इस चीज का क्या मतलब है? For example, जो father हैं और जो mother हैं, ठीक है, suppose father की characteristics और mother की characteristics अलग अलग है. For example, father के जो बाल हैं वो हैं black, mother के बाल हैं वो हैं brown. Okay, तो जो बच्चा होगा उसके जो बाल हैं वो black भी हो सकते हैं, वो ब्राउन भी हो सकते हैं, बट वी कैन हैव अनदर वेरिएशन लाइक ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर भी हो सकता है. ओके, सो एंड उसमें भी बहुत कलर के बहुत डिफरेंट टोन भी हो सकते हैं उस कलर के. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय वेरिएशन. ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में होंगे यानी नेक्स्ट जनरेशन में होंगे, दे विल बी वेरिंग इन नेचर. ओके, so children, now at this point I will advise you to take a pause and recollect and recap all the slides and the audio to understand what we have done till now. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, right? Okay, so I hope you have taken a break, you have taken a pause and recollected, recapped everything what we have done till now. Now, let us move ahead. Now, whatever text I have given in these slides is taken from your book. So, जो written part है, that is completely from the book. Now, book क्या बोलती है कि the flowers are the reproductive parts of a plant. Now, we are going to talk about the sexual reproduction in plants. तो plants का कौन सा structure है जो reproduction में part लेता है? That is the flower. Now, stamens are the male reproductive part and the pistil are the female reproductive part. Now we are talking about sexual reproduction. So sexual reproduction के लिए हमको क्या चाहिए? एक male parent चाहिए, एक female parent चाहिए. तो जो flower है उसके अंदर male वाला जो reproductive part है वो होता है stamen and जो female reproductive part होता है उसको बोलते हैं pistil. और ये दोनों part लेंगे sexual reproduction in plants में. नाउ फ्लावर्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी जिसमें यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मेल और फीमेल. तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. चाहे तो उसमें स्टेमेंस प्रेजेंट हो तो वो स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर कहलाएगा, चाहे तो उसमें पिस्टल प्रेजेंट हो तो वो पिस्टलेट या फीमेल फ्लावर कहलाएगा. और एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों चीज प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो अब आगे देखते हैं. बुक में आपके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के. एक होता है कॉर्न का प्लांट, एक पपाया एंड वन इज कुकुम्बर. इन तीनों प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं यानी मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है. नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स दिए हैं मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया. यानी ये जो तीनों फ्लावर्स हैं, ये जो तीनों प्लांट्स हैं, इनकी फ्लावर्स में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. मींस इस वाले फ्लावर में स्टेमेंस भी होंगे और पिस्टल भी होंगे. सेम इज विद द रोज एंड सेम इज विद द पिटूनिया. ओके, नेक्स्ट. नाउ before we go ahead we should know the structure of a flower जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था. ठीक है, फ्लावर के सारे पार्ट्स वर्ल्स में अरेंज होते हैं. तो जो फर्स्ट वर्ल इज कॉल्ड सेपल, सबसे आउटर मोस्ट. सेकेंड वर्ल इज द पेटल्स जो बहुत कलर्स में आता है. उसके बाद थर्ड वर्ल इज कॉल्ड द स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड फोर्थ वर्ल इज द कार्पल और द पिस्टल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. लेट्स मूव अहेड.
Now, what do they say in the book? That can you identify anther and the filament of a stamen? Yes, very well we know. जो ऊपर वाला lobular structure है that is the anther, and जो नीचे धागे जैसा एक structure होता है जिसको filament बोलते हैं. Okay, next. अब stamens के part हम लोग देख लेंगे. Okay. स्टेमन के पास जो लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है एंथर, उसको अगर हम कट ओपन करें तो उसके अंदर ये चैम्बर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 4 आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है. ओके. तो इनके अंदर पोलन, इनको बोलते हैं पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर बहुत ही छोटे डॉट 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 वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन. ओके. नेक्स्ट. अब इसके बाद ये बात कर रहे हैं पिस्टल की. तो पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके जो पार्ट्स ये आपको बता रहे हैं. सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टिकी, उसको बोलते हैं स्टिग्मा. फिर ये जो ट्यूब वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टाइल. सबसे लोअर मोस्ट जो पोर्शन होता है, जो स्वोलन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द ओवरी. और ओवरी के अंदर यू कैन सी दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ओव्यूल्स. ओके. This is just a recap of what you have read in class 6. Now थोड़ा सा डिटेल में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पिस्टल का. तो सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, दिस सोलन पोर्शन इज ओवरी, और जो बीच में डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर, उनको बोलते हैं ओव्यूल्स. यू मस्ट नो ऑल द पार्ट्स वेरी वेरी क्लियरली, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करते वक्त इनका जिक्र करेंगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. नाउ इसके आगे बुक में लिखा है कि जो फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, वो हो सकता है एक ही प्लांट पे पाए जाएं. तो इस तरह के पौधे को बोलते हैं मोनीशियस. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट पूरा मेल फ्लावर्स के से भरा हुआ हो और दूसरा प्लांट पूरा फीमेल फ्लावर्स से. तो जो इस तरह का पौधा होता है उसको बोलते हैं डाइशियस. और एक जहाँ पे मेल और फीमेल कंबाइंड है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें प्रेजेंट है, वो हार्माफ्रोडाइट तरह की स्पीशीज होती है प्लांट्स की. ओके. नाउ नेक्स्ट. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आगे बात कर रहे हैं, अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. ये ऑलरेडी हमने बताया था, फर्स्ट पार्ट जो हमने पॉज देने के पहले पढ़ा था. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेमन है. ठीक है. ये आपका स्टिग्मा है, पिस्टल का सबसे ऊपर का पोर्शन. इसमें से जो मेल गैमेट है वो आके इधर पहुंच जाता है, और मेल और फीमेल गैमेट मिलके एक नया सेल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोट. ठीक है. दिस मच इज क्लियर नाउ. अब बूजो क्या पूछता है कि बूजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule. तो जो मेल गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन में. जो और पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एंथर के अंदर. अब वो वहां से पोलन ग्रेन किस तरह से फीमेल गैमेट तक पहुंचता है? फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल में. ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में. तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं और कैसे ये होता है? तो ये जो प्रोसेस है, जो बूझो का डाउट था, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें ट्रांसफर होता है पोलन का, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो हमने इस वाले इसमें दिख रहा है आपको. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. ओके. नाउ मूविंग अहेड. पॉलिनेशन, ठीक है, ये प्रोसेस तो हो गया, बट पॉलिनेशन होता कैसे है? तो जिन चीजों के द्वारा ये पॉलिनेशन होता है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं. ये विंड और वाटर हो सकते हैं, इंसेक्ट्स या बर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. तो होता क्या है, जो ये पोलन ग्रेन है, दे हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट. बहुत आउटर जो कवरिंग है बहुत ज्यादा टफ होती है, और इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, बचा रहता है ड्राई होने से या कोई भी एडवर्स कंडीशन से. ठीक है. Now, since pollen grains are light and they are very very lightweight, so they can be easily carried by wind and water. ठीक है. तो जब हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ये बहा लिए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है? मेल गैमेट. तो ये पोलन ग्रेन जब इधर इन एजेंट्स के द्वारा
चले जाते हैं दूर और स्टिग्मा पे जाके गिर जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, और ये विंड या वाटर के द्वारा हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट क्या है, नेक्टर पीने के लिए फ्लावर्स में जाते हैं और वहां उनकी बॉडी से जो है पोलन ग्रेन्स चिपक जाती हैं, और इस वजह से भी ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आएगा व्हेन यू सी दिस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लेट्स सी दिस। हवा और पानी का मैंने आपको बता दिया, अब इंसेक्ट्स की बारी है। अब ये देखिए, ये इंसेक्ट इधर आता है फॉर द नेक्टर। अब इसके जो विंग्स हैं, इसकी बॉडी में बहुत सारे पोलन्स यहाँ से चिपक गए। अब ये उड़ के गया दूसरे फ्लावर में, और दूसरे फ्लावर में जाके जब ये नेक्टर पीने के लिए बैठता है तो इसके जो ये है बॉडी में लगे हुए पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पोलिनेटिंग एजेंट पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, और सेम इज डन बाय द बर्ड्स। ओके, नाउ पोलिनेशन के अब टाइप्स आपको बता रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। नाउ पोलिनेशन, अगर जो पोलन है वो लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट के ऊपर होना चाहिए। तो अभी आपको क्लियर होगा इस वाले फोटो से। तो अगर सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, एंड इफ एक फ्लावर का दिस थिंग goes to the stigma of दूसरा flower of another plant, then it is cross pollination। इसमें और ज्यादा क्लियर हो गया। ये देखिए, सेम फ्लावर का सेम स्टिग्मा में चला गया तो सेल्फ, सेम फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गया लेकिन प्लांट सेम है, देन ऑल्सो इट इज सेल्फ। ओके, इट इज सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर यहां से जो है इस वाले से पोलन गया दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। डन। ओके, नाउ आता है इंपॉर्टेंट थिंग, फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। ये हमने पहले भी सबसे शुरू में बताया था। उसके बाद जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट है, जो नया सेल बना, उसके अंदर मिनी प्लांट होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चल के प्लांट में डेवलप हो जाता है। नाउ एट दिस स्टेज आई एडवाइज यू टू टेक अ पॉज एंड रिकलेक्ट, रिकैप एवरीथिंग जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया। Okay children, now we start the third portion of this long lecture, which is called fertilization। fertilization का अब आप ये important diagram पहले देख लो। ओके, इसमें पहले समझ लो, सबसे ऊपर ये क्या है, स्टिग्मा है। ओके, उसके बाद ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका स्टाइल। और उसके बाद ये जो सोलन पोर्शन नीचे आपको दिख रहा है, ये है आपका ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ये छुटकू सा जो है, दिस इज द एग सेल और द फीमेल गैमीट। अच्छा, अब आपको पता है जो मेल गैमीट है वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, एंथर में। एंथर में भी कहाँ पे, पोलन ग्रेन में। ठीक है, तो पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड is called pollination। अब जब ये यहाँ पे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड कर गया, now it will develop a tube। ये आपको दिख रही है, this is the tube। अब ये इस ट्यूब के अंदर से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, या ठीक है, वो इसके अंदर ट्रेवल करते 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 कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंच जाएगा ओव्यूल। ओव्यूल तक, ओवरी में पहले जाएगा, फिर ओव्यूल तक पहुंचेगा, और फिर ओव्यूल में जाके जो मेल गैमीट है वो रिलीज कर देगा, जो कि जाके फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इसमें भी आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपकी बुक से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या था, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा में जाके इट डेवलप्स अ पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब, okay, now this pollen tube will carry this
मेल गैमीट डाउन बिलो। अब ये देखो पोलन ट्यूब जाते गई ओवरी में जाके पहुंच गई एंड नाउ इट इज गोइंग टू द ओव्यूल, और ओव्यूल में जाके जो मेल गैमीट है उसके अंदर जाके इट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। ओके, now I hope this process is of fertilization is clear. Let us take the quiz जिससे कि आपको वापस से याद रहे and you will not forget. Okay, first heading, पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। दिख रहा है आपको ये चुटकू सा जो इधर है, दिस इज द पोलन ग्रेन, ये कहाँ पहुंचा है, स्टिग्मा पे पहुंचा है। और ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, अभी लेट अस सी। पोलन ट्यूब कंटेनिंग मेल गैमेट, ऑब्वियसली इट विल डेवलप अ पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर जो ये वेट, पोलन ट्यूब के अंदर ये जो चुटकू सा राउंड राउंड जा रहा है, दिस इज द मेल गैमीट। अच्छा, नाउ थर्ड है, विच इज दिस पोर्शन, फीमेल गैमीट इन ओव्यूल फ्यूजिंग विद मेल गैमीट। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है, और फीमेल गैमीट के पास ये कौन पहुंचा है, येलो कलर का, मेल गैमीट। ठीक है, सो फीमेल गैमीट इन ओव्यूल फ्यूजिंग विद द मेल गैमीट। और उसके बाद ये लास्ट पोर्शन तो आपको सभी को पता है, दिस सोलन पोर्शन इज ओवरी। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कौन कहाँ जाता है और कैसे फ्यूज होता है। ओके, लेट्स गो अहेड। Now this is a cycle, complete cycle of sexual reproduction in plants. So सबसे पहले क्या हुआ, एंथर से मेल गैमिट बनी। मेल गैमिट किसके अंदर है, पोलन ग्रेन के अंदर है। नाउ ये पोलन ग्रेन आके लैंड हुआ स्टिग्मा के ऊपर। अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर जाके पोलन ग्रेन विल डेवलप इनटू अ ट्यूब, ये आपको दिख रहा है चुटकू सा, और यहाँ से ये ट्यूब के अंदर मेल गैमिट है जो कि इट इज फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमिट हियर। और उसके बाद जब सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन दैट सीड इज कॉल्ड, सॉरी दैट ओव्यूल, जब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। और सीड आपको पता है, सीड के अंदर से क्या निकलता है, न्यू प्लांट निकलता है। सो हियर दे हैव शोन द न्यू प्लांट। और न्यू प्लांट के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, फिर उसके अंदर से फ्लावर निकलेगा, और फ्लावर में फिर से क्या होगा, स्टेमन और पिस्टल होगा, फिर से उसमें वापस से पोलिनेशन होगा, और फिर वापस उसमें फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अगेन द सीड विल फॉर्म एंड दिस cycle goes on. Okay, right, now go ahead. फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर्स। अब क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है, ये देखो ये है ना ओवरी, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ था, ओव्यूल इसी के अंदर मिलता है। द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। तो ये जो ओवरी है, ये बड़े होते 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 राइप करते करते फ्रूट में बदल जाएगी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विल फॉल ऑफ। तो ये जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, पेटल्स वगैरह, ये सब गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, एंड व्हाट वी विल हैव इन द एंड, वी विल जस्ट हैव द राइपेंड ओवरी, एंड जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्रूट। ओके, नेक्स्ट। अब सीड क्या होती है, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। जो हमने ये देखो, हमने ये ओवरी देखी थी, तो ये जो राइपेंड ओवरी थी ये था फ्रूट, और इसके अंदर ये जो छोटे 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 हैं, ये क्या है, ओव्यूल, जिसके अंदर क्या होता, फर्टिलाइजेशन हुआ था। अब ये जो ओव्यूल हैं, जब जैसे जैसे ये राइप करेंगे, सो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, yes, they will get converted into seed. So seed are what? Seed are the matured ovules, and the seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. तो embryo क्या है? Embryo is nothing but the new individual plant, जो कि जब seed germinate होगी तो बाहर आ जाएगा. So the seed contains embryo enclosed in a protective coat. Okay. So now the some fruits are fleshy, as you can see here, fleshy fruit, fleshy and juicy like mango and orange. All of us we eat mango and orange, and some fruits are hard like almonds. Okay, so almonds or walnuts जिस तरह के fruit हैं, they are called dry fruit because इनमें pulp नहीं होता है, और ये जो है fleshy fruits, इसमें बहुत सारा pulp या juice होता है, इसलिए इनको fleshy fruits बोलते हैं. अच्छा, एक चीज और है, ये जो dry fruits हैं, इनका जो pulp है, everything is dried up. Okay, सो जो हम इसका ये खाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सीड ऑफ द फ्रूट यू आर ईटिंग. सो इन ड्राई फ्रूट्स वी ईट द सीड्स.
Like here you can see fruits and seeds. This is watermelon. First one, watermelon is a fruit and watermelon has many seeds. तो अगर ovary के अंदर बहुत सारे ovules हैं, so we will get many seeds. Now in this you can see a peach, and peach is a fruit and it has only one seed. तो जो peach की ovary थी, फ्लावर की ओवरी थी, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से एक ही सीड बना है. तो आई होप फ्रूट्स एंड सीड्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है, and how a fruit is formed from the ovary, how the fertilization occurs, and how the entire process of sexual reproduction happens in plants, flowering plants. So let us all enjoy having fruits which are very good for health, and let us be very, very clear with the sexual reproduction in plants. Meet you again. Till then, happy reading. Bye bye.